Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11th chemistry, chapter number 10 S block element, and it is the second part of this chapter. Today topic is ionization enthalpy. So we are seeing here in the group 1 the ionization enthalpy of the lithium is 519, for sodium 494, for potassium 418, for rubidium 402, for cesium 376, and second ionization enthalpy for the lithium is 7300, sodium 4560, potassium 3070, for rubidium 2370, and cesium 2420 is the value. And for the group 2 barium, the value of the ionization enthalpy of the barium is 900, first ionization enthalpy, second is 1760, and the third is 14800. In magnesium, first ionization enthalpy is 736, the second is 1450, the third is 7740. Calcium, first ionization enthalpy is 590, second is 1150, third is 4940. For strontium, the first is 548, second is 1060, the third is 4120. Barium 502, second 966, and the third ionization enthalpy of the barium is 3390. So we are seeing here when we are going to up to down, the value of the ionization enthalpy is going to be decrease. Now the next is the ionization enthalpy have generally low. First ionization enthalpy has it well shielded from the nucleus by an inner shell. The second is removal of the second electron is much more difficult because it involves the removal of the inner shell electron. The third is ionization enthalpy decrease as the group is descended. As atomic radii increase, the outer electron is further away from the well shielded nucleus. Now the next is the for the group second have low first and the second ionization enthalpy. रिमूवल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ मच मोर डिफिकल्ट, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एज इनर शेल इलेक्ट्रॉन. सो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज द ग्रुप इज डिसेंडिंग, एंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप सेकेंड इज जनरली हायर देन द ग्रुप वन. जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ग्रुप सेकेंड की, वो ग्रुप वन की तुलना में ज़्यादा ही होती है. नाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनिक फॉर्म में बताया गया है कि जो आयंस हैं फर्स्ट ग्रुप के सेकेंड ग्रुप के व्हेन कंबाइन इन एक्वस स्टेट, तो हीट जो है वो यहाँ से हमें मिलती है. नाउ द वैल्यू ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. Now the next is the hydration enthalpy is the general tendency on going down the both groups. Hydration enthalpy decrease, hydration enthalpy की जो वैल्यू है दोनों ही ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है. As the ions get larger, the charge density of the ion decrease the electrostatic attraction between the ions and the water molecules get the smaller. The second group, second ions have the hydration enthalpy is higher the group second ketenes are the doubly charged and have a smaller in size. Now variation in the melting point, we are seeing here the strength of the melting point depends on the ionic radius. तो melting point की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है उनकी ionic radius पर, and number of the electron contributed to the electron C per atom, and the crystal lattice structure here. The exceptionally high melting point of the calcium is due to the contribution of the d orbital participate of the melting point. तो यहाँ बताया गया है कि
कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। लिथियम का जो स्ट्रक्चर है वो BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आई वर ऑलरेडी एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर। सो लिथियम का BCC, सोडियम BCC, तो फर्स्ट ग्रुप में जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं वो सभी BCC टाइप के हैं और सेकेंड ग्रुप में बेरियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो SCP टाइप के होंगे। कैल्शियम का CCP और स्ट्रोंशियम का भी CCP टाइप का होगा और जो बेरियम होगा जिसे हम BA से रिप्रेजेंट करते हैं इसका BCC टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके जो मेंबर हैं दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देयर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज डाउन बोथ ग्रुप। उनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप दोनों में ही। एज द अटोमिक साइज इंक्रीजेस, जब अटोमिक साइज बढ़ता है इट बिकम ईजियर टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। S block elements reacts rapidly with the oxygen except beryllium and the magnesium. They have to be stored only liquid paraffin to prevent contact with the atmosphere. यहाँ पे जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं उन्हें लिक्विड पैराफिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से कंटैक्ट न करें। नाउ द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, द स्ट्रक्चर आर हियर। नॉर्मल ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड ग्रुप सेकंड, तो ग्रुप सेकंड और लिथियम के द्वारा इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। परऑक्साइड का हमें देखने को मिल रहा है OO किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। तो सोडियम और जो बेरियम है वो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सुपर ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द वाटर। सो वी आर सीइंग हियर कि जो वाटर के साथ में जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है वो लिथियम का -3.05 वोल्ट है, सोडियम का -2.71 लिथियम का -3.05 वोल्ट, पोटेशियम के लिए -2.93, रुबिडियम के लिए ये -2.99 है, सीजियम के लिए -3.20 है। नाउ द नेक्स्ट इज बेरिलियम -1.85 वोल्ट है, मैग्नीशियम -2.38 है, कैल्शियम का -2.87 है एंड SR स्ट्रोंशियम का -2.89 है एंड बेरियम का ये -2.90 है। ओके, एंड द एनर्जेटिक वेज द काइनेटिक फैक्टर जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, द रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप। जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करनी हो तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओनली BeS2 एंड द MgS2 आर द कोवलेंट। इसके अंदर केवल BeS2 और MgS2 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एंड द अदर्स आर द आयनिक, और जो दूसरे हैं वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। नाउ रिएक्शन विद द क्लोरीन, ऑल द S ब्लॉक मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली। जितने भी फर्स्ट ग्रुप की हमें मेटल्स देखने को मिल रही हैं ये डायरेक्टली क्लोरीन से कंटैक्ट करते हैं। ऑल ग्रुप्स 1 और ग्रुप फर्स्ट क्लोराइड्स आर आयनिक। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं जो क्लोराइड्स बनाते हैं ये सब आयनिक फॉर्मेशन होता है। BeCl2 इज एसेंशियली कोवलेंट विद द कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। जो BeCl2 है ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। द लोअर मेंबर इन ग्रुप सेकेंड फॉर एसेंशियली आयनिक क्लोराइड्स, जो सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर हैं वो आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं विथ मैग्नीशियम हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, और इसमें जो मैग्नीशियम है उसके अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती है। नाउ although lithium has a highly negative E0, it's only reacts slowly with the water. The illustrates the importance of the role of the kinetic factor is determine the rate of a chemical reaction. The lithium has a higher melting point. This increase the activation energy required the dissolution in the aqueous solution. It does not melt during the
reaction as sodium and the potassium do, and thus it has a smaller area of the contact with water. Now the variation in properties of the compounds, तो हमें compounds की properties में क्या क्या variation देखने को मिलता है उनकी स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं. रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन करते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगी. रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के साथ में जो रिएक्शन करते हैं हमें उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स के साथ में जो रिएक्शन है उसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है. रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोक्साइड एंड द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड. नाउ रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड, ऑल ग्रुप द फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं दे ऑल आर द रिएक्ट्स इन अ ऑक्साइड फॉर्म एंड विथ वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड. ये खुद पहले ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसके बाद में वाटर से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड का क्रिएशन करते हैं. सो हियर ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड को एक्सप्लेन किया गया है. नाउ द सेकेंड इज ऑल ग्रुप. फर्स्ट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक एंड द बेसिकली इंक्रीज डाउन द ग्रुप. जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनका जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बेसिक टाइप के होते हैं और ऊपर से नीचे जाने के बाद में इनकी जो बेसिसिटी है यानी कि जो इनका क्षार गुण है वो बढ़ता जाता है. नाउ ग्रुप सेकेंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर जनरली लेस बेसिक देन ग्रुप फर्स्ट इज द बेरियम ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड आर द एम्फोटेरिक. फिर आगे की तरफ बताया गया है कि जो ग्रुप सेकेंड के अंदर जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं इनमें ये लेस बेसिक होते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप की तुलना के अंदर इनके अंदर जो क्षार गुण होता है वो कम होता है. एंड बेरियम ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड आर द एम्फोटेरिक. जो बेरियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं ये एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं. नाउ reaction of the chloride, and this topic I will be explaining the next part of this chapter. Thank you very much students.